جانو غور سے سنو، سیٹھ کپاڈیا کل رات اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر ایک شادی میں جا رہا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں گھر میں صرف بچے ہوں گے یا پھر سرونٹ کوارٹر میں سویا ہوا ملازم۔ سرونٹ کوارٹر کوٹھی کے پچھلے حصے میں ہے۔ ملازم کی نیند بہت پکی ہے، اس لیے تم آسانی سے وہاں ہاتھ صاف کر سکو گے، کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ سیٹھ کپاڈیا کی کوٹھی تو خیر ہم نے دیکھی ہے، آج بھی اس طرف کا چکر لگا لیتے ہیں تاکہ پروگرام طے کر سکیں۔ لیکن باس، آپ کو آخر یہ معلومات کیسے حاصل ہو جاتی ہے؟ جانو کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا کام ہے، تم اپنا کام کرو، اور ہاں بچے، تم تینوں میں سے کسی کا چہرہ نہ دیکھ پائیں۔ اگر وہ تم میں سے کسی کا چہرہ دیکھ لیں تو پھر انہیں زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اس صورت میں ہم مارے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں باس، آپ فکر نہ کریں، زیورات اس کے سیف کے پچھلے خانے میں ہوتے ہیں، لیکن تم لوگوں کے لیے وہ خفیہ خانہ کھول لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، کیونکہ اس کے بعد میں تم سے رابطہ کل رات گزر جانے پر ہی کروں گا۔ یہ معلومات کافی ہیں باس۔ نقدی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نوٹوں کے نمبر ہوتے ہیں جو پکڑے جا سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم صرف زیورات اٹھانا، ان کے پاس زیورات کم نہیں ہیں، ان میں ہیروں کے بھی زیورات ہیں۔ ہاں پھر تو مزہ آئے گا باس۔ جانو نے چٹخارا بھرا جیسے ہیرے کوئی کھانے کی چیز ہو۔ باس نے ہنس کر فون بند کر دیا۔ جانو اب اپنے باقی ساتھیوں کو نئی مہم کے بارے میں ہدایت دے رہا تھا۔ سیٹھ کپاڈیا اپنے بچوں کے ساتھ مخاطب تھا، کہنے لگا، اچھا بچوں، اگر تمہارے سالانہ امتحان کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں بھی ساتھ لے چلتے، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ ان کا بیٹا حسن بولا، جی نہیں، ڈر کی کیا بات ہے، پھر بھی تم اکرم چچا کو اپنے کمرے میں بلا لینا، وہ آج رات سرونٹ کوارٹر میں نہ سوئیں۔ دوسرے بیٹے نے کہا، بابا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، عائشہ تم ان تینوں سے بڑی ہو، تم ان کا خیال رکھو گی، اور تم تینوں بڑی بہن کی بات مانو گے، آپس میں لڑو گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک ساتھ بولے، بابا آپ فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سیٹھ کہنے لگے، اور آپ اکرم چاچا آج ہی ان کے ساتھ والے کمرے میں سو جانا، انہیں رات میں کسی چیز کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اکرم چاچا نے فوراً کہا کہ سر آپ فکر نہ کریں، وہ ان کے بہت پرانے ملازم تھے اور سیٹھ صاحب انہیں پسند کیا کرتے تھے، ان کا بہت خیال بھی رکھتے تھے، تنخواہ تو ان کی معقول تھی ہی، یوں بھی سیٹھ صاحب ان کے دکھ سکھ میں ہر طرح کے کام آتے۔ ان کے بیوی بچے گاؤں میں رہتے تھے، کوئی گھریلو مسئلہ پیش آ جائے تو سیٹھ صاحب ان کی فوراً مدد کرتے تھے۔ اس طرح اکرم چاچا اس گھر کے ہر فرد کے چاچا تھے۔ اچھا تو پھر ہم چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے باری باری بچوں کو گلے سے لگایا، ان کی والدہ نے بھی پیار کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بچے کوٹھی کے دروازے پر کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے یہاں تک کہ گاڑی موڑ سے مڑ گئی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور موسم شدید سردی کا تھا۔ سردیوں کی راتیں یوں بھی لمبی ہوا کرتی ہیں۔ بچے کہنے لگے، اکرم چاچا آپ آرام کریں، ہمیں تو ابھی نیند نہیں آ رہی۔ اکرم چاچا نے کہا، چلیں اچھی بات ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا چائے بنوانی ہو تو مجھے بس آواز دے دیجیے گا، میں اٹھ جاؤں گا۔ بچوں نے کہا، نہیں نہیں اکرم چاچا، یہ کام ہم خود کر لیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے، بس آپ لمبی تان کر سو جائیں۔ اکرم چاچا نے کہا، اچھا بیٹا ٹھیک ہے، اور کوٹھی کا گیٹ بند کر کے اندر کی طرف مڑ گئے۔ ان چاروں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ 10 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عائشہ بولی کہ یہ اس وقت کون آ گیا؟ حسن نے اٹھتے ہوئے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل کر گیٹ پر آیا اور بولا، کون صاحب؟ آواز آئی، جی میں ایک بیوہ ہوں، میرے بچے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ اس قسم کے حالات میں میں پہلے بھی کئی بار اس دروازے پر آ چکی ہوں، سیٹھ صاحب ہر باری میری مدد کر چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، سردی بہت ہے، آپ اندر آ جائیں، ہم آپ کی مدد کیے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر حسن نے دروازہ کھول دیا، ساتھ ہی وہ زور سے اچھلا، اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ باہر دروازے پر کوئی عورت نہیں، 4 لمبے تڑنگے مسلح نقاب پوش افراد کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، گویا ان میں سے ایک نے آواز بدل کر عورت کی آواز منہ سے نکالی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ سب بچوں کے رنگ زرد پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو بچوں، ہم تمہارے لیے بہت اچھے بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور بہت برے بھی۔ اگر تم لوگوں نے تعاون کیا تو
तो हम बहुत जल्द पुरसुकून अंदाज में यहाँ से चले जाएंगे। आयशा ने कांपती आवाज में पूछा, आप क्या चाहते हैं? बस कोई खास बात नहीं है, हम लोग इस घर के जेवरात ले जाएंगे। क्या आप चोर हैं? हसन चिल्ला उठा। भाई चोर कह लो, डाकू कह लो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह एक तरफ बैठ जाओ और हमें अपना काम करने दो, बल्कि अपने कमरे में चलो। अब वो सब कमरे में आ गए। एक डाकू ने कहा, उस्ताद माफ करना, ये कोई शरारत कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें बांध देना चाहिए, उनके होंठों पर टेप चिपका देनी चाहिए, इस सूरत में हम अपना काम इत्मीनान से कर सकेंगे। बच्चों ने कहा, नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें ना बांधो। जीरे, तुम्हारी बात ठीक है, इन चारों को बांध देना मुनासिब है। उन्होंने जेबों से रेशम की डोरियां निकाली और उन्हें बांधने लगे। उनका उस्ताद एक तरफ खड़ा ये कार्रवाई देख रहा था। बांधने के बाद उन्होंने उनके होंठों पर टेप भी चिपका दी और कहा, क्यों बच्चों, अब तुम बात कर सकते हो या नहीं? बच्चे ऊ करके रह गए। उस वक्त उस्ताद ने कहा, आओ इनके वालिद के कमरे में चलते हैं, इन्हें यहीं पड़ा रहने दो। लेकिन उस्ताद, इन्हें इस तरह खुले कमरे में छोड़ना तो मुनासिब नहीं होगा, इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। जीरे, तुम रोज बरोज अक्लमंद होते जा रहे हो, ऐसे साथियों में तो काम का मजा आता है। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दो। वो कमरे से निकल आए, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब उन्होंने एक कमरे का जायजा लिया। सैफ जिस कमरे में नजर आई वो सेठ कपाडिया और उनकी बेगम का कमरा था। चलो उस्ताद, अपना फन आजमाओ, फिक्र ना करो, ये क्या तिजोरी है, मेरे आगे तो बड़ी बड़ी तिजोरियां हाथ जोड़ देती हैं। उस्ताद जानू ने मुस्कुरा कर कहा और फिर वो अपनी चाबियों और मुड़े तुड़े तारों के साथ तिजोरी पर जुट गया। उसके 3 साथी दम साधे उसकी तरफ देख रहे थे। हसन ने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की। आयशा और दूसरे भाई ने भी उसकी तरफ देखने के लिए पलटियां सी खाईं और देखने के काबिल हो गई। वो आंखों से अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। ये दरवाजा कमरे का अंदरूनी दरवाजा था जहां अकरम चाचा सो रहे थे। क्या करना चाहिए? आंखों ही आंखों में आयशा से पूछा। हसन ने कोई जवाब ना दिया बल्कि खुद को दरवाजे तक ले जाने लगा। अब वो समझे कि वो क्या करना चाहता है। तीनों उसकी तरफ पुर उम्मीद नजरों से देखने लगे। आखिर उसने खुद को उस दरवाजे से टकरा दिया। हल्की सी धुम की आवाज सुनाई दी। एक टक्कर और हसन, आयशा ने आंखों ही आंखों में उससे कहा। हसन मुस्कुरा दिया और फिर खुद को दरवाजे से टकराने लगा। कई बार की धम ने आखिर अकरम चाचा की नींद में खलल डाल दिया। चंद लम्हे तक वो सोचते रहे कि ये आवाजें कैसी हैं, लेकिन कुछ समझ में ना आया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैं ख्वाब में आवाजें सुन रहा था। ये ख्याल आते ही उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उस वक्त फिर धुम की आवाज सुनाई दी। अकरम चाचा की आंख फिर खुल गई। अब उन्होंने महसूस कर लिया कि अंदरूनी दरवाजे से कोई टकराया है, तो उन्हें खौफ महसूस हुआ। फिर हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ का मंजर देखकर वो बुरी तरह से उछले। फिर इससे पहले कि वो खौफजदा अंदाज में चिल्ला उठते, आयशा ने मुंह से आवाज निकाली। उससे वो रुक गए। आयशा ने अपना मुंह ऊपर की तरफ करके उनकी तवज्जो टैप की तरफ दिलाई। कमरे में बल्ब पहले ही से रोशन था और डाकू ने लाइट ऑफ करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अकरम चाचा फौरन आयशा पर झुक गए और आहिस्ता आहिस्ता टेप उतारने लगे। आयशा ने इस लम्हे शदीद तकलीफ महसूस की, लेकिन मजबूरी थी, ये काम तो होना ही था। आखिर टेप उतर गई। अब आयशा ने अकरम चचा के कान में सारी बात बताई। उनकी आंखों में और ज्यादा खौफ बस गया। उन्होंने कहा, अब सवाल ये है कि मैं तुम लोगों को कैसे खोलूं? चाकू या छुरी लाने के लिए मुझे बावर्ची खाने जाना पड़ेगा। बावर्ची खाने में जाने के लिए मुझे साहब जी के कमरे के सामने से गुजरना पड़ेगा और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो सारा काम तमाम हो जाएगा। अकरम चचा के अल्फाज दरमियान में रुक गए। मारे खौफ के उनका मुंह खुले का खुला रह गया। अंदरूनी दरवाजे में उस्ताद का साथी खड़ा था। उसके हाथ में स्याह रंग का पिस्तौल था और पिस्तौल का रुख उनकी तरफ था। धम धम की आवाज उस तरफ से आई थी। तुम शायद इस घर के मुलाजिम हो,
मगर तुम्हें तो सर्वेंट क्वार्टर में होना चाहिए था। शायद तुम इस साथ वाले कमरे में सोए हुए थे और सेठ कपाडिया ने तुमसे कहा होगा कि बच्चों के पास सोना, यही बात है ना? अकरम चाचा ने खौफजदा अंदाज में सर हिलाया। तुम मेरे आगे आगे चलो, याद रखो कि पिस्तौल बेआवाज है। कोई हरकत करने की कोशिश की तो गोली दिमाग में सुराख करती दूसरी तरफ से निकल जाएगी। चलो अपने साहब के कमरे में। उस्ताद से पूछना होगा कि अब क्या किया जाए, और हाँ, हाथ सर से ऊपर उठा दो। अकरम चाचा के हाथ ऊपर उठ गए। वो उसके आगे आगे चलते सेठ कपाडिया के कमरे में दाखिल हुए तो उस्ताद जानू और बाकी दोनों साथी उछल पड़े। अरे ये क्या, ये हम क्या देख रहे हैं? बाल बाल बचे उस्ताद। यही तो पता नहीं था कि घर का मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, उनके कमरे के साथ वाले कमरे में सोया हुआ है, और दोनों कमरों के दरमियान में भी एक दरवाजा है। ओह, उन तीनों के मुंह से निकला। फिर उस्ताद जानू चिल्लाया, जीरे ये तुमने क्या किया? क्या किया उस्ताद, क्या किया मैंने? बेवकूफ, पहले तुम बहुत अक्लमंद नजर आ रहे थे, अब अकल से पैदल हो। तुम भूल गए बॉस की हिदायत को। बॉस ने क्या कहा था कि ये लोग हम में से किसी का चेहरा ना देख पाएं, लेकिन इन्हें हमने बांध कर कमरे में बंद करने के बाद अपने चेहरों से नकाब हटा दिए थे, और तुम धम धम की आवाजें सुनकर उसी हालत में उनके सामने चले गए। ओहो उस्ताद जी, जीरे के मुंह से निकला। क्या मतलब, इससे क्या फर्क पड़ गया? अकरम चाचा बोले, अब तुमने हमारे चेहरे देख लिए हैं, लिहाजा तुम पांचों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जाओ उन चारों को उठाकर यहाँ ले आओ। नहीं नहीं नहीं, अकरम चाचा चिल्ला उठे। अब तो उसकी आंखों में सारे जहां का खौफ समा गया, बदन में थरथरी दौड़ गई, और उस्ताद के तीनों साथी कमरे से निकल गए। जल्द ही चारों बच्चे भी उस कमरे में नजर आए। तुमने सुना उस शख्स ने क्या कहा? चूंकि हमने उनके चेहरे देख लिए हैं, इसलिए अब हमें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। आयशा के मुंह से निकला, नहीं 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 उस्ताद, अगरचे सर्दी का मौसम है, आसपास घरों में लोग लिहाफों में दबके हुए हैं, यहाँ की आवाजें उन तक किसी सूरत नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी एहतियात का तकाजा यही है कि इन दोनों के मुंह बंद कर दिए जाएं। बाकी तीन के पहले ही बंद हैं। ठीक है, उस्ताद ने सर हिलाया। जीरे ने अब अकरम चाचा को भी बांध दिया। उनके और आयशा के होंठों पर भी टैप चिपका दी। उस्ताद उस वक्त तक तिजोरी खोल चुका था और वो उसमें से जेवरात और जवाहरात निकाल कर एक बैग में भर चुका था, लेकिन अभी तिजोरी पूरी तरह खाली नहीं हुई थी। उनके देखते ही देखते उन्होंने तिजोरी खाली कर दी। चलो जीरे, अब इनका काम तमाम कर दो। उन पांचों के जिस्मों में थरथरी दौड़ गई। उन्होंने जोर जोर से नफी में गर्दनें हिलाना शुरू कर दी। ये देखकर जीरा बोला, उस्ताद ये कुछ कहना चाहते हैं, बेचारे आखिरी बार कुछ कह लेंगे। उनकी आवाज कहाँ बाहर चली जाएगी, और फिर शदीद सर्दियों की रात है। लोग यूं भी कमरों के दरवाजे बंद किए लिहाफों में दबके हुए हैं और सो रहे हैं। अच्छी बात है, इनके मुंह खोल दो। उन्होंने चारों के होंठ से टेप उतार दिए। वो फौरन ही गिड़गिड़ाने लगे कि हमें ना मारो, हमारी ये सारी दौलत ले जाओ, हमारी जिंदगियों के बदले तो हमारे माँ बाप तुम लोगों को इससे भी ज्यादा दौलत दे देंगे, और किसी को भी तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हम भी अपने माँ बाप को या पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे, बल्कि हम तो माँ बाप को वैसे ही रोक देंगे, वो पुलिस को बुलाएंगे ही नहीं। देखो रुक जाओ, ये जुल्म मत करो, अल्लाह के लिए हमें ना मारो, हमें ना मारो। वो कहते जा रहे थे और उनकी सिसकियां बुलंद होती जा रही थीं। आंसू उनकी आंखों से ज़ारो कतार बह रहे थे। उनकी आहोजारी ने डाकुओं को सोच में डाल दिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उस्ताद ने परेशानी के आलम में कहा, और अगर इन्होंने हमारे हुलिये बता दिए तो? कहा, हम वादा करते हैं। देखो वो ऊपर अलमारी पर कुरान करीम रखा हुआ है, तुम कहो तो हम उस पर हाथ रखकर वादा करते हैं हम अपने माँ बाप को तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, उन्हें पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाने नहीं देंगे। क्यों उस्ताद, क्या कहते हो? देख लो भाई, कहीं मारे ना जाएं, इन्हें बचाते बचाते खुद जेल ना चले जाएं, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, साल के लिए। बच्चों ने कहा, हमने वादा तो किया है, हमसे कुरान करीम पर हाथ रखवा कर वादा ले लो। अब फिर उन तीनों ने उस्ताद की तरफ देखा। आखिर जानू ने कहा, अच्छी बात है, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ, हमारे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। ठीक है,
रखो हाथ और खाओ कसम। जीरे ने कहा कि ठीक है, रखो हाथ और खाओ कसम। हम ऐसे कैसे हाथ रख दें? वुजू करके हाथ लगा सकते हैं। चलो वुजू कर लो। अब उन पांचों ने वुजू किया, फिर कुरान पर हाथ रखकर उनसे वादा किया कि उनके हुलियों के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं बताएंगे और सेठ कपाडिया को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से भी रोक देंगे। ये वादा लेकर उन्होंने जेवरात का बैग उठाया और कोठी से निकल गए। उनके जाने के बाद अकरम चचा ने गेट बंद कर दिया। अब वो अंदर आए और सहन में बिछी कुर्सियों पर बैठकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई ख्वाब देखा है। आयशा बड़बड़ाई, तिजोरी खुली पड़ी है, ये ख्वाब कैसे हो सकता है? अल्लाह को यही मंजूर था, हम खुशकिस्मत हैं, जाने बच गईं। अकरम चचा ने कहा और फिर बकिया रात उन्होंने आंखों में ही काट दी। सुबह 9 बजे गाड़ी के हारन की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने जल्दी से तिजोरी का दरवाजा बंद कर दिया, रस्सियों के टुकड़े वगैरह वहां से साफ कर दिए, फिर अपने वालिदैन का इस्तकबाल करने के लिए गेट की तरफ दौड़ पड़े। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सुनाओ कैसी गुजरी रात तुम लोगों की? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजरी, वो एक साथ ही बोले। बाप ने कहा, लेकिन तुम लोगों के चेहरे उतरे महसूस हो रहे हैं। और तो और अकरम चाचा भी बुझे बुझे से दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं अब्बू, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों अकरम चाचा? अकरम चाचा ने कहा, बिल्कुल, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, हम सब ठीक हैं। फिर वो सब बाग में आ बैठे। सेठ कपाडिया ने एक बार फिर सबके चेहरों का जायजा लिया और बोले, क्या कोई बात हो गई है? रात को कुछ हुआ जरूर है, तुम लोगों के चेहरे चुगली खा रहे हैं। जी हाँ, मैं बताती हूँ, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा। हमने किसी को एक वादा दिया है, आप हमारे वादे को निभाएंगे, उसके खिलाफ नहीं करेंगे। बाप ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बताओ, हम बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं। अब आयशा ने सारी बात तफसील से सुना दी, जो भी उनके साथ रात को बीता था। फिर वो खामोश हो गए। सेठ कपाडिया उछलकर खड़े हो गए और पुकार उठे, उफ, ये बहुत बुरा हुआ। वो एकदम घबरा गए। क्या हुआ अब्बू? बहुत बुरा कैसे हो गया? हम सबकी जानें तो बच गईं। बुरा कैसे हो गया? बुरा ऐसे हुआ कि जो जेवरात वो ले गए हैं वो तो सब के सब नकली थे। क्या? वो चिल्ला उठे। थोड़ी देर तक उन सब पर सकते की हालत तारी रही। आखिर आयशा बोली, लेकिन अब्बू, बुरी बात कैसे हो गई? ये तो और ज्यादा अच्छी बात हो गई, हमारे जेवरात भी बच गए और जाने भी महफूज हैं। अब सेठ कपाडिया ने कहा, लेकिन तुमने जाने असली जेवरात के बदले में बचाई हैं। हमें शुक्र इस बात पर करना था कि चलो जेवर गए तो क्या हुआ, जाने तो बच गई। असली जेवरात उस सैफ में तो थे ही नहीं। स्टोर में जो पुरानी सैफ है वो तो हम उसमें रखते हैं। अब मैं उन्हें किस तरह से पैगाम दूं कि आओ मेरे बच्चों की जिंदगियों के बदले में असल जेवरात ले जाओ? ये अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। अफसोस, सद अफसोस, ये गम मुझे मार डालेगा। अकरम चाचा, तुम सुन रहे हो? ये गम मेरी जान ले लेगा। अकरम चाचा कहने लगे, नहीं मालिक, नहीं, आप इस गम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं उनमें से एक को पहचानता हूँ, वो आपके करीबी दोस्त शाहनवाज सारो की कोठी में रहता है। ओह, तब फिर हम उसे पैगाम देंगे, वो चारों आकर असल जेवरात ले जाएं। दूसरे दिन शाहनवाज सारो के मुलाजिम को ये तहरीरी पैगाम मिला, जिसमें लिखा था, मोहतरम भाई, उन बच्चों को बिल्कुल मालूम नहीं था कि उस तिजोरी में नकली जेवरात हैं। सारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने बच्चों की जिंदगियों के बदले में नकली जेवरात देकर खुश नहीं रह सकूंगा। आप लोग आकर अपने जेवरात ले जाएं। आपका दोस्त, आपका हमदर्द, सेठ कपाडिया। जीरे को ये पैगाम मिला तो उसने अपने तीनों साथियों के सामने रख दिया। फिर उन्होंने अपने बॉस के सामने रखा। उन्हें दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। आखिर उसके दूसरे दिन सेठ कपाडिया को उन पांचों की तरफ से ये तहरीर मिली, सेठ कपाडिया, हमारे भाई, हमारे दोस्त, आपने हमें इस दुनिया का असली रुख दिखा दिया है। हमें अब आपके जेवरात की कोई ख्वाहिश नहीं रही। हम पांचों खुद को कानून के हवाले कर रहे हैं। फकत वस्सलाम। उस्ताद जानू, जीरा, रानू, बाकर और उनका साथी शाहनवाज सारो। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद और इतनी बड़ी वारदात होने के बाद सेठ साहब ने कैसे उन लोगों को अपने जेवरात देने के लिए ईमानदारी दिखाई, और सेठ साहब की ईमानदारी को देखकर कैसे डाकू सीधे रास्ते पर आ गए। क्या आज के डाकू ऐसे हैं या आज के सेठ लोग भी ऐसे हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।